Sangeeta, you can start your song, sister. Yes, brother. Praise the Lord. God bless Praise you the all. Lord. Praise the Lord. गाती हूँ ब्रदर. हाँ जी. जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया. जय जय प्रभु यीशु की. हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो. हा 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 हा. ला 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 ला. हालेलुया आमीन. खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप. धो लो तुम भी अपने हृदय को, जिसमें रहे नादाग. खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप. धो लो तुम भी अपने हृदय को, उसमें रहे नादाग. जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया. जय जय प्रभु यीशु की. हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो. आहा हा 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 हा. ला 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 ला. हालेलुया आमीन. ग्रहण करो तुम आज यीशु को, स्तुति और शांति महान. उसको बना लो खीवनहारा, नाव लगा लो पार. ग्रहण करो तुम आज यीशु को, स्तुति और शांति आराम. उसको बना लो खीवनहारा, नाव लगा लो पार. जय जय प्रभु यीशु की. जय जय प्रभु यीशु की. हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो. आहा हा 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 हा. ला 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 ला. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you. God bless you all. Amen. Amen. God bless you, sister. Very nice song. प्रभु की स्तुति के लिए आपने गाया. प्रभु आपको बहुत आशीष दे. God bless you, sister Ripsim. How are you? God bless you, everyone. I'm fine. Our meeting ended late because it had started late. Okay. Did you tell Brother Sarkis about my situation today? Yes, I told him. Yeah, maybe next Sunday around. That means I will have to speak to before 10 o'clock, correct? Yes, here My time. 10 o'clock, your time, because we don't know for sure. It will start at 12 or 1 o'clock here, but we don't know yet. It depends when Varjan can come. So you today will he have to came text late. me. You will have Yes, to I text will. me. Yes, Yeah. I will. If you text me, then I will get ready around that time. But I think it should be around my time, around 10 o'clock or 9:30 or something like that. Yeah, Yes, so because before the of 3 hour. meeting. Yeah, because of the 3 hours time difference. Yeah. Yes, yes. So you still have a lot of snow? Yes, lots of snow.
Yes. Yeah, I sometimes see some people post some pictures of Armenia on Facebook. It is all white, everywhere white. Yes. Hmm. So Mari goes to school in the white weather. Yes, because they took her to the school by car. So Oh, yeah. mhm. Yeah, but that is normal in Armenia because every winter it happens. So this is normal. Uh, yes, for Razdan it is normal. For Yerevan it is not. It is surprising because in Yerevan they see very little snow, not so much. I see. But for Razdan it is normal. Every year it's the same thing. So in your area, back garden everywhere is white. Yes, they joke about Razdan. They say in Razdan there are two weathers, winter and cruel Snow. winter. Snow and winter. No, Yes. winter. Two kind of winters in Razdan. Yeah, severe winter and winter. Yes, mild winter, yes, severe winter. Oh yeah, I know, but it is okay. People get used to that. Yes. Yes. So you will have a song, sister, in English or Armenian? I thought the whole song in English and some parts in Armenian, Hindi, French, even Russian. Okay. Yeah, it is very good, very good. You can keep ready, and now we will hear the song from Brother Lekraj and family, Sister Ruth and Brother Lekraj group. We will hear the Zabur or Psalms. Um, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਬੂਰ ਤੁਸੀਂ गाओगे भाई जी लेखराज जी? प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ब्रदर सिस्टर सभी को। गॉड ब्लेस यू जी। प्रभु के मेहमान लिए हम जबूर गाएंगे 139। They are going to sing Psalm 139, जबूर 139, सिस्टर रूथ और उनके परिवार के साथ हम सुनेंगे। सिस्टर जी तुसी जबूर स्टार्ट कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू। ए खुदा तू मैनू जांचदा, मेरा हाल पछाणदा है। ए खुदा तू मैनू जांचदा, मेरा हाल पछाणदा है। मेरा बैठना मेरा उठना सब कुछ तू जानदा है। मेरा बैठना मेरा उठना सब कुछ तू जानदा है। ए खुदा तू मैनू जांचदा, मेरा हाल पछाणदा है। ए खुदा तू मैनू जांचदा, मेरा हाल पछाणदा है। मेरा बैठना मेरा उठना सब कुछ तू ही जानदा है। मेरा बैठना मेरा उठना सब कुछ तू ही जानदा है। मेरिया सोचां ते अनदेश वाकिफ है तू सबना तू। मेरिया सोचां ते अनदेश वाकिफ है तू सबना तू। मेरा तुरना मेरा सोना वाकिफ है सब राह तू। मेरा तुरना मेरा सोना वाकिफ है सब राह तो। ऐ खुदा तू मैनू जांचदा, मेरा हाल पछाणदा है। मेरा बैठना मेरा उठना सब कुछ तू जानदा है।
मेरी जीव दे नहीं को ओई बात अजे भी, मेरी जीव दे नहीं को ओई बात अजे भी, जिस तू तेनू ए खुदावंदी होवे ना कुछ वाक भी, जिस तू तेनू ए खुदावंदी होवे ना कुछ वाक भी, ए खुदा तू मैनू जांचदा मेरा हाल पछाणदा है, मेरा बैठना मेरा उठना सब कुछ तू ही जानदा है, मेरे आगे पीछे तू ही घेरन वाला है सदा, मेरे आगे पीछे तू ही घेरन वाला है सदा, तू ही रखिया मेरे उत्ते अपना हाथ खुदावंदा, तू ही रखिया मेरे उत्ते अपना हाथ खुदावंदा, ऐ खुदा तू मैनू जांचदा मेरा हाल पछाणदा है, मेरा बैठना मेरा उठना सब कुछ तू ही जानदा है, ए ज्ञान ते मेरे लिए एक अचरज अचंबा है, ए ज्ञान ते मेरे लिए एक अचरज अचंबा है, जिस तिकर मैं पहुंच ना सकदा ओ निहायत ऊंचा है, जिस तिकर मैं पहुंच ना सकदा ओ निहायत ऊंचा है, ए खुदा तू मैनू जांचदा मेरा हाल पछाणदा है, मेरा बैठना मेरा उठना सब कुछ तू ही जानदा है, ए खुदा तू मैनू जांचदा मेरा हाल पछाणदा है, मेरा बैठना मेरा उठना सब कुछ तू ही जानदा है, आमेन हालेलुया। प्रभु दा धन्यवाद। And God bless you, sister. प्रभु हमारी सारी बातों को जानता है, हमारे दिल को जानता है. Lord knows about us everything. He knows our heart and He knows our inside out. And this is what we believe. So when we know that He knows everything, so we are not worried. We sing song for Him, we praise Him, and we worship Him for everything. Amen, amen, amen. सिस्टर संगीता, ये जो कोई सिस्टर ने ज्वाइन किया, शिल्पा ने, इनके बारे में आप बोल रही थी? यस ब्रदर, ये मेरी फ्रेंड है, 2019 से मसीह बहन है, और इनको ट्रुथ जानने के लिए ये कहती है मैं तो इनके घर आके बताऊं या फोन से, तो मैंने कहा मीटिंग ज्वाइन करो, और पूरा परिवार बैठता है, ये लोग अपनी फैमिली प्रेयर जरूर करते हैं। क्या आपका आसपास ही रहते हैं ये? नहीं है तो एक कोना, पहले इधर थोड़ा पास पड़ते थे, अब एक कोना इनका एक कोना मेना शहर का। ओके, कोई बात नहीं, तो ज्वाइन करेंगे तो अच्छी बात है, हमारे लिए भी आशीष है, उनके लिए भी आशीष है, प्रभु के मैंने नाम कहा को हम महिमा देंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो सिस्टर शिल्पा, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? सिस्टर शिल्पा, शिल्पा बात करो ब्रदर से, ऑडियो खोलो उधर से।
जी जी पास्टर जी, आपकी आवाज आ रही है। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू, आपको आपके सारे परिवार को जय मसीह की। और वीडियो पे सिस्टर भी आ संगीत, सकती सिस्टर आप इंट्रोडक्शन के लिए। हाँ थैंक जी यू। सिस्टर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और प्रभु आपके साथ हो और आपको बहुत आशीष दे। और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, पंजाब से भी और दूसरे कंट्री से भी जुड़े हुए हैं, और यूपी से भी। तो प्रभु आपके साथ हो। और सिस्टर संगीता हमारी बहुत अच्छी बहन है बरेली से, तो उन्होंने आपके बारे में जिक्र किया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आपके ज्वाइन करने के लिए। और इस मीटिंग में सिर्फ हम प्रभु की वचन की बातें करते हैं, एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, प्रार्थना करते हैं। किसी की कोई दुख बीमारी होती है उसके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हर संडे को हम यहाँ पर 5 बजे शाम को इंडियन टाइम के हिसाब से ज्वाइन करते हैं। तो आप अपना जो व्हाट्सएप पे अगर नंबर हमें भेज देंगे, या सिस्टर संगीता से भी आप ये ज्वाइनिंग डिटेल ले सकती हैं, उनके पास होते हैं रेगुलरली हमेशा। ये मैंने भेजा था जी ब्रदर सर। ठीक है ठीक। क्या कहते हैं शिल्पा, ये ब्रदर इमैनुअल है। अच्छा, और सारी मीटिंग कंडक्ट होती है, सारे भाई बहन है मसीह। और तो यहीं से ही तुम्हें पता चलेगा, ठीक है, सारी चीजें सुनना। जी सिस्टर। ठीक है सिस्टर, ट्रुथ जो है वो किसी इंसान के पास नहीं होता। हाँ, एक ऐसी संगति से हमें मिल सकता है, ऐसी फेलोशिप से, जहाँ पर ट्रुथ प्रचारा जाता है। पर ट्रुथ जो है वो प्रभु का जो वचन है, परमेश्वर का वचन है, वही सच्चाई है, वही ट्रुथ है। और हमें प्रभु के वचन की ओर मन लगाना चाहिए और उसकी संगति में रहना चाहिए। सो गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आपको बहुत बहुत प्रभु आपको बहुत आशीष दे सिस्टर शिल्पा को। अब हम अगला गीत सुनेंगे सिस्टर रिप्सिम से। सिस्टर रिप्सिम, आर यू रेडी विद योर सॉन्ग सिस्टर? गॉड ब्लेस यू। Yes, brother, I will sing the Lily of the Valley Okay. in English, also the first part in Hindi, Armenian, French. Okay, good, very good. You have posted the song on the chat. But maybe there is a limit for the text, yes? No problem. How much you can, how much you can post is fine. Yeah, whatever you are able to post is fine. Now I will post also a part of Hindi. One moment. Maybe I didn't post in the whole group, but to Sister Sangita, I see. Okay, no problem. Whatever is there, but you will sing, so we will understand something. God bless you. But I think I found how to post for everyone. Okay. It's Hindi. Yes, yes. मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शरण का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा है एक ही प्रिय है। उसको दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। ये सिस्टर ने ये सॉन्ग पोस्ट किया है, वी कैन फॉलो इट व्हेन शी सिंग्स इट। सो यू कैन स्टार्ट सिस्टर, यू कैन स्टार्ट योर सॉन्ग। गॉड ब्लेस यू। I have found a friend in Jesus, He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll.
He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my grief has taken, and all my sorrows borne. In temptation he's my strong and mighty tower. I have all for him forsaken, and all my idols torn from my heart, and now he keeps me by his power. Though all the world forsake me, and Satan tempt me sore, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do his blessed will. A wall of fire about me, I've nothing not to fear. With his manna he my hungry soul shall feed. Then sweeping up to glory, to see his blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है. वो शारों का गुलाब है और बोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है. उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है. वो शारों का गुलाब है और बोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है. तेरी susimbare kamse insamara memban tas hazarat me jane yereveli anhovit neru shushane astegaravotian tas hazarat me jane yereveli Vishtu tzavi menjzis machit harogean Torins kase hoker tantaneli Anhovit neru shushane astegaravotian Tas hazarat mechane yereveli Во Христе нашел я друга по сердцу своему, Он дороже мне, чем 1000 друзей. Он лилия долины, звезда моих путей, В нем приобрел я целительный елей. Скорбя всегда к нему я за помощью спешу, все заботы на него я возложу. О, лилия долины, звезда моих путей, он дороже мне, чем 1000 друзей. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est le lys de la vallée et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison. Mon réconfort dans les peines, appui dans les tourments. Il m'invite à lui confier chaque souci. La brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Amen. God bless you all. And God bless you, sister. Thank you for this lovely song. Sister Rip Singh ने ये गाना 3 languages में गाया, Hindi, English और French में. She sang this in 3 languages. A wonderful song, praising our Lord, that what He is, we receive peace through Him, and He is the lily of Sharon, and He is the morning star, and this is the way we worship our Lord. We are happy about it. Thank you, sister. God bless you.
अब हम अपनी मीटिंग को आगे Brother, बढ़ाते हुए it was also in Armenian and in Russian too. Okay. Yes. I could not catch that. So it was in 5 languages, 5 languages में sister ने ये गीत गाया. God bless you for this, sister. And God has given you a great gift. Thank you, Lord. And may God use you more and more with this gift. Amen. और अब हम अपनी सभा को आगे बढ़ाते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे. आज भाई जसविंदर हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो उनका परिवार कवेंट्री गए हुए हैं बर्मिंघम के आगे. वहाँ पर ब्रदर पॉल मुकेंदी के साथ आज वो फेलोशिप कर रहे हैं क्योंकि सिस्टर का आज ऑफ था तो वो उधर गए हैं, इसलिए आज हम उनको नहीं देख पा रहे. भाई जोशुआ आज रिकॉर्डिंग करेंगे और भाई किशन के द्वारा हम परमेश्वर का संदेश सुनेंगे. विल हियर द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू ब्रदर कृष्णा फ्रॉम दिल्ली एंड ही विल be speaking in Hindi and I will be able to translate for Brother Krishna. Brother Krishna, you are ready? जी भाई जी, प्रभु के अनुग्रह से जी. आमीन. But before that, we will go in prayer. भाई राकेश के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे और इस मीटिंग को और इस प्रार्थना सभा को और इस सारे प्रोग्राम को प्रभु के हाथ में हम सौंपेंगे. भाई राकेश के साथ हम प्रार्थना करेंगे. ब्रदर राकेश, गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. तो आइए हम सब जन खुदा की हजूरी में आ चुके हैं और प्रभु का शुक्रगुजारी, प्रभु का धन्यवाद करेंगे और इस बंदगी मीटिंग की शुरुआत प्रभु के पवित्र नाम से करेंगे. और खुदा का कलाम हमें सिखाता कि कोई भी कार्य करो खुदाबंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करो. प्यारे खुदाबंद प्रभु, हम आपका शुक्रगुजारी करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं. खुदा, आप पवित्र परमेश्वर हैं, अनुग्रही परमेश्वर हैं, दया के सागर है, शांति के मसीहा हैं प्रभु, और आपके नाम में शांति है प्रभु. और खुदाबंद प्रभु जी, जो भी आपकी हजूरी में आता है खुदा, उस शांति को ग्रहण करता है. और सचमुच प्यारे खुदाबंद प्रभु जी, आपने खुदाबंद इस संसार से इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार प्रेम किया, अपने आप को खुदाबंद इस पूरी दुनिया के ऊपर निशावर कर दिया, जो खुदाबंद आपके नाम के ऊपर जो कि प्रभु कोई ईमान लाए प्रभु, वो अपनी जिंदगी को पाता है. सचमुच प्यारे खुदाबंद, जिसका ईमान खुदाबंद आपके नाम पे होता है प्रभु, आप उसे मुक्ति देते हैं, उद्धार देते हैं खुदा, शांति देते हैं, सैल्वेशन देते हैं प्रभु. और खुदाबंद आपका नाम वो नाम है प्रभु, जिस घराने जिस जीव के ऊपर प्रभु आपका नाम प्रचार किया जाता है, आपका नाम उंडेला जाता है प्रभु जी, उस घर में शिफा आती है, चंगियाई आती है, शांति आती है और बहुत सारे कष्टों से निवारण होता है. और खुदाबंद, आप प्रभु जी दया करने वाले परमेश्वर हैं और अनुग्रह करने वाले दाता हैं. सर्वशक्तिमान खुदा, आप जिस घराने में आते हैं प्रभु जी, जिस जीव में आते हैं प्रभु जी, उसमें बढ़ते हैं और खुदाबंद ऐसे बढ़ते हैं प्रभु जी, उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देते हैं. खुदाबंद, आप जैसे जैसे खुदाबंद बढ़ते जाते हैं प्रभु जी, आपके कार्य भी बढ़ते जाते हैं प्रभु. हम उसी नाम में इकट्ठा हुए हैं, इसी नाम में प्रभु जी हम सब जन प्रभु जी इस बंदगी मीटिंग में आए हैं. खुदाबंद, शुक्रगुजारी करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ हर एक आशीष के लिए खुदाबंद, हर एक बरकत के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा. और उन सभी चीजों को स्मरण करता हूँ खुदाबंद, जैसे आपने भजन संहिता में लिखवाया है कि उसके कामों का वर्णन करो, उसकी वडियाई करते रहो, उसकी महिमा करते रहो. तो प्यारे खुदाबंद प्रभु जी, हम हर एक चीज के लिए आपका थैंक्स करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. उन बड़े कष्टों, मुश्किलों, हालातों से हमें बचा के रखा है खुदा, बड़ी बड़ी बीमारियों से हमें बचाया है प्रभु जी, और कोरोना जैसी बीमारियों से, मौत के हाथों से भी हमें बचा लिया है खुदाबंद. आपका धन्यवाद करते हैं खुदाबंद प्रभु, और निरंतर प्रभु जी अपनी बंदगी में हमें बना के रखते हैं प्रभु जी, जिसकी वजह से खुदाबंद प्रभु जी हम शुक्रगुजारी और धन्यवाद करने वाले होते हैं प्रभु. हम प्रभु जी आपका न्याय नहीं प्रभु, आपकी दया को मांगते हैं खुदाबंद, और जानते हैं प्रभु हमारे कार्य अच्छे नहीं है प्रभु, फिर भी हम कोशिश करते हैं खुदाबंद कि प्रभु जी वो कार्य करें जिससे प्रभु आपका आत्मा आनंदित होता है. और खुदाबंद प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा हमें गाइडेंस देता है, हमें समझ देता है कैसे हमने प्रभु जी चलना है. जैसे खुदाबंद आपका
दास दाऊद प्रभु जी हमेशा आपकी बंदगी में, गीतों में, भजनों में रहता था प्रभु। और खुदावंद आपने उसे अपना फेवरेट कहा है, मन पसंदीदा कहा है प्रभु जी। और होने दे प्रभु जी, हमारे कार्य भी ऐसे हो जो आपको अच्छे लगे, आपको भाए प्रभु। और इसी तरह प्रभु जी हम आपके कलाम में, वचन में बने रहे। प्यारे खुदावंद, प्रार्थना करते हैं आज के कलाम के लिए, आज के वचन के लिए। खुदावंद भाई कृष्णा को खुदावंद आपके जोरावर सामर्थी हाथों में देते हैं प्रभु जी, इस्तेमाल करें। और खुदावंद प्रभु जी भाई अमेनुअल को जो खुदावंद ट्रांसलेट करने जा रहे हैं प्रभु जी, उनको भी प्रभु जी इस्तेमाल करें। और जिस तरह प्रभु जी निरंतर प्रभु जी आप अपने दासों सेवकों से प्रभु जी अपनी सेवा लेते आ रहे हैं प्रभु, खुदावंद इसी तरह प्रभु जी जब तक आप आ नहीं जाते खुदावंद इस्तेमाल करें खुदावंद। जो आज का कलाम हम सुने प्रभु जी, बहुत सारी आशीष और बरकत को पाए। और खुदावंद भाई जसविंदर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी फैमिली को खुदावंद आपके सीधे और सामर्थी हाथों में देते हैं प्रभु। होने दे प्रभु जी, हमेशा उनकी रक्षा सहायता करते रहे प्रभु जी। स्थान के ऊपर है प्रभु जी, आपकी महिमा को, आपके नाम को जलाल देने वाले हो प्रभु। प्यारे खुदावंद, इस मीटिंग के लिए फिर से प्रार्थना करते हैं और सारी कार्रवाई आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। अगला समय आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. God bless you, brother. Thank you very much for this prayer. प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, और हर चीज के लिए उसका बहुत धन्यवाद हो। सिस्टर रेबेका, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आई होप यू आर ओके। सिस्टर रेबेका, आप ठीक हैं? प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। यस ब्रदर, हम ठीक हैं, आप ठीक हैं? हाँ ठीक है, ठीक है। मैं क्योंकि आप लोग थोड़ा लेट हो गए, मैंने कहा कि सब खैरियत पूछ लो। जी ब्रदर, सॉरी। कोई बात नहीं। चलो, अभी आपने ज्वाइन कर लिया, अब हम वचन स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ वी विल हियर टुडेज वर्ड ऑफ गॉड थ्रू ब्रदर कृष्णा। भाई कृष्णा के साथ हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, जैसा परमेश्वर ने उनके हृदय में डाला है पवित्र आत्मा के द्वारा। भाई कृष्णा हम सब जानते हैं कि वो दिल्ली की कलीसिया से संबंध रखते हैं, इज कनेक्टेड विद द चर्च इन दिल्ली, and he's a good and faithful brother. His family lives in Nepal. Sister is not with us today because I think she has got some throat pain or something, I was informed. हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, उनको प्रार्थना में याद रखेंगे। और अब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं भाई कृष्णा के साथ। भाई जोशुआ जी, तुसी रिकॉर्डिंग रेडी ना? जी ब्रदर, ठीक। ओके जी, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। ओवर टू ब्रदर कृष्णा। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। सबसे पहले मैं प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में आप सबको ग्रीट करता हूँ। First of all, I greet you all in the name of Lord Jesus Christ. क्योंकि उस सामर्थ्य नाम में ही हम यहाँ एकत्र हुए हैं। Because we have come together in the mighty name of our Lord. और यहाँ हम एकत्र इसीलिए हुए हैं कि हम उसकी महान वचन को सुने। And we have come together here only for one person, to hear the great word of the Lord. और उसी के सुनने से ही हमारा विश्वास बढ़ता है। And hearing the word of God increases our faith. और ये इसीलिए आवश्यक है कि वचन में हर जगह कहा है, सुनो मेरी वचन को सुनो। प्रभु ने हर जगह कहा है। That's why the Lord has pronounced everywhere and given emphasis that we should hear the word of God. बिना सुने विश्वास नहीं बढ़ता। Without hearing the word of God, the faith does not increase. और रोमी की पुस्तक कहता है, It says in the book of Romans, chapter 10, it says in Romans chapter 10 verse 17 and verse 17, वचन विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। and faith comes by hearing and hearing of the word of God. Amen. और आमीन। जैसा कि मुझे प्रसन्नता हुई कि एक बहन जो सिस्टर शिल्पा है, वो ज्वाइन होने के लिए, वचन सुनने के लिए ललायित हुई। And I'm very glad to know that Sister Shilpa
from Bareilly was inspired today to come and join and hear the word of God. Sister Sangeeta, आप अपना mic off कर दें, please. ये Thank you. ये एक प्रभु को पाने का, प्रभु पर आने का ये अच्छा जरिया है। Now this is a good means and this is a good step to come forward and hear the word of God, to know more about the Lord. और ये ब्लेसिंग का भी कारण है, And this is a good reason for the blessings we receive. क्योंकि हम जब सुनते हैं When we hear और उस पर ईमान ले आते हैं, and we believe and obey it, जैसा कि भाई ने प्रार्थना में भी कहा कि ईमान ले आकर के ही हम उद्धार पाते हैं। भाई राकेश ने प्रार्थना में कहा, as Brother Rakesh had said in the prayer, that we are saved when we believe. हम जब प्रभु के वचन सुनते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं, उस पर आज्ञाकारी होकर के चलते हैं, तब हम उद्धार को पाते हैं। When we hear the word of God and we believe the word of God and we remain obedient to the word of God, then we are saved. आजकल संसार में दो तरह से समझ का विकास हो रहा है। And the knowledge is being increased in this world in twofold, in two ways. एक परमेश्वर का वचन का समझ, One is the knowledge of the word of God, और दूसरा जो कि संसार की समझ है, संसार का ज्ञान। and another one is the knowledge that comes from the world. और परमेश्वर का वचन हमें उद्धार की ओर, उन्नति की ओर, छुटकारे की ओर और अनंत जीवन की ओर ले जाता है। The word of God leads us towards salvation and also for the peace and also for eternal life. और संसार का समझ, संसार का नॉलेज वो हमें दासत्व की ओर और उसमें बोझ की ओर ले जाता है। And the knowledge of the world takes us toward the bondage. और वो अंततः उसमें विनाश की ओर, डिस्ट्रैक्शन की ओर ले जाता And है। it leads to destruction ultimately. ठीक है, संसार का हमें ये समझ का हम विरोध नहीं करते, पर उस पे निर्भर होना बहुत खतरनाक है। We are not against the knowledge that we acquire from the world, but just to depend on that knowledge is dangerous. पर हमें किस पर भर करना चाहिए, किस पर आशा लगाना चाहिए, किस पर विश्वास चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के समझ पर। And we should depend and bestow only on the word of God. और इसके लिए आवश्यक है कि हमें एक को इनकार करना पड़ेगा और एक को स्वीकार करना पड़ेगा। So what is essential to acquire this is that we will have to accept one and reject the other one. हमें अगर कोई कहे कि मैं दो नाव पर चलता हूं, तो फिर वो कितना खतरनाक होगा मेरे प्यारे भाई बहन। How dangerous it will be to sail on two boats. इसीलिए एक को इनकार करना आवश्यक है। That's why to deny one of them is essential. एक पर आप आसरा लिए, लीन करें, उसमें सहारा लें, तो ये आपके लिए, हमारे लिए बेनिफिट होगा। It is beneficial for all of us, so that we depend only on one of them, that is the word of God. Yes, बट संसार हमें नए नए अट्रैक्शन के साथ में, नए नए चीजों के साथ में, हमें वो लुभावनी मन भावनी चीजों के साथ में अट्रैक्ट करता है। But the knowledge of the world brings to us many attractions and many good looking and many interesting things. जो कि अदन की बगीचा में भी शुरुआत में यही हुआ था, वो देखने में मन भावन और अच्छा दिख रहा था। And that's how it is said about the fruit in the Garden of Eden, that it was good to look at and very attractive. इसीलिए संसार का जो भी चीज है वो अट्रैक्टिव होता है, वो मन भावनी होता है। That's why it is anything that belongs to the world and comes with the knowledge of the world comes with the attraction. पर परमेश्वर का वचन आपको हो सकता है कि कठोर लगे, But it may be the word of God might sound little hard for us. पर ये अनंतता के लिए और हमारे सल्वेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। But it is essential, very essential and necessary for our eternal life. और ये हमें सिद्धता की ओर ले जाता है, परफेक्शन की ओर ले जाता This will take us towards perfection. और जैसा कि
सिस्टर संगीता ने कहा, as Sister Sankita had mentioned, शुरू में जब कहा कि उन्होंने वो दास बनाना चाहते थे, हमें दासत्व में ले जाना चाहते थे, इसीलिए मैंने इनकार कर दिया। हालेलुया। it says that her employer wanted to keep her in bondage and work as a slave, so I refused. हाँ, एक को इनकार करना आवश्यक है मेरे प्यारे भाई बहन। Dear brothers and sisters, it is essential for us to take a stand and deny one of them. प्रभु का वचन कहता है कि हम उस दासत्व से निकले। And word of God says that we came out from that bondage. प्रभु ने स्वयं बुलावट देकर के कहा है। The Lord himself called us मत्ती की पुस्तक 11 में in Matthew 11. उसका 28 से लेकर के मैं पढ़ने जा रहा हूँ 30 तक। I'm going to read Matthew 11 and beginning from verse 28. मत्ती की पुस्तक 11 उसका 28 से 30 तक यूं लिखा है। I'm going to read two verses 28 to 30, Matthew 11. यस, हे सब विश्राम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन से दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। Matthew 11 verse 28 to 30 reads, Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Amen. आमीन। परमेश्वर का जुआ वो हल्का है। The yoke of the Lord is light. वो दासत्व में नहीं ले जाता हमें। It will not lead us or take us or keep us in ये slavery हमें and bondage. ये हमें स्वतंत्र करता है। It will set us free. पर इसके लिए आवश्यक है कि हम उसकी आवाज को सुने, उसकी वचन को सुने। It is necessary, therefore, that we should hear his voice, that is his word. और जो कोई उसकी आवाज को सुनता है, उसकी वचन को सुनता है, वो आशीषित होता है। And the one who hears his word is blessed. और वो अनंत जीवन को पाता है। And will find the eternal life. और प्रकाश की पुस्तक यही कहता है, चैप्टर As 1, it says in the book of Revelation, chapter 1, उसका 1:3 कहता है, एक अध्याय and 3 Revelation verses। chapter 1 and verse 3. यस, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनता है और उस इनमें लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है। आमीन। Revelation chapter 1 and verse 3, it says, Blessed is he who reads and those who hear the words of the prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. आमीन। Amen. हमें पढ़ना है, सुनना है और उस पर चलना है, उस पर मानना मीन्स चलना है, तभी हम ब्लेस्ड हैं। We have whatever is written in this word of God, we have to hear and read and then obey and lead our life and follow it. सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, It will not suffice only by reading. और सिर्फ सुनने से भी नहीं होगा। Even just by reading, it is not enough. Even सुनने से, not by hearing, not by only hearing, Not just by hearing. और उस पर चलने से तब जाकर के हम आशीषित होंगे। We should walk on it. Whatever we hear, we believe, and then we follow and walk on it. तभी जाके हम आशीषित होंगे, तभी जाकर के हम उस अनंतता को पाएंगे। Then only we will enter into eternity. इसका बहुत सरल एग्जाम्पल है, There is a very, very simple example to this. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहीं भी कठिन नहीं है, सरल है। Because the word of God is very simple. It is not complicated. लोग इसको कॉम्प्लिकेट बनाते हैं, But they make it complicated to understand. पर परमेश्वर का वचन बहुत सरल है। The word of God is so simple. जो उसको मानते हैं,
Those who obey this और उस पर चलते हैं and follow this, तो उनके लिए ये वचन बहुत सरल है। and this word is very, very simple for them. प्रभु की महिमा हो। May the Lord be blessed. हम जाएंगे Now we go further. कि वो हम पढ़े जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो एग्जाम्पल दिए हैं। We should read those examples which the Lord has enlisted for us in His Word. यस, ये सेकंड किंग, दूसरा राजा, उसका 4 में जाते हैं हम। We go to 2 Kings and chapter 4. यस, उसका 1 से मैं पढ़ूंगा वचन में। 2 Kings चैप्टर 4 and वर्स 1। chapter 4 and verse 1. यस, वचन में यूं लिखा है, दूसरा राजा It says, उसका 4 अध्याय और 1 पद यूं लिखा है, भविष्य says, वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वो आया है कि मेरे पुत्रों को आपने दास बनाने के लिए ले जाए। आमीन। Amen. It says here in 2 Kings chapter 4 and verse 1, a certain woman of the wives of the son of prophets cried out to Elisha, saying, your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my 2 sons to be the slaves. आमीन। यहाँ हमने पढ़ा कि कौन था भविष्य वक्ताओं में से एक की पत्नी। Now there are many prophets, and out of them the wife of one of the prophets, जो कि विधवा थी, उसका पति मर गया था, and her husband was dead and she became a widow. और वो एलिशा के पास आकर के कह रही है, And she comes to prophet Elisha, और वो अपने परिस्थिति बयां कर रही है, and she is stating her condition about her. आज के जमाने में लोग मसीह को कहते हैं, मसीह जन जो कहे जाते हैं, वो कहते हैं कि मसीह में आने का मतलब ब्लेसिंग, आशीष है। And in today's world, the people say that if you come into the Lord, if you follow the Lord, that means you keep on getting many blessings. और आप धनवान होंगे, and you will become wealthy. यहाँ तो भविष्यवक्ता के पत्नी आके कह रही है, मेरा हस्बैंड था वो कर्जदार था। Now here the wife of one of the prophets comes to Elisha and says, my husband who is dead, and he was in debt. वो कर्जदार था, he was found to be in debts. कर्जदार Yes, he was in debt. Yes. तो भाइयों, मेरे प्यारे भाई बहनों, Dear brothers and sisters, कि हम किस लिए मसीह बने हैं ये हम भूल गए। have we forgotten why did we take a decision to follow Christ? या फिर वो संसार को पाने के लिए, संसार में उन्नति पाने के लिए मसीह में आए हैं? Did we come to follow Christ just to be rich and be prosperous in this world? या फिर अनंत जीवन के लिए हम मसीह में आए हैं? Or have we started following the Lord for the sake of receiving the eternal life? तभी तो पौलुस फिर गलाती में कहते हैं, That is why Paul says in the book of Galatians, क्या हम आत्मा में शुरू करके शरीर में खत्म करें? should we start with the spirit and finish with the flesh? वो गलतियों को, कलीसिया को डांटते हुए कहते हैं कि तुमको किसने भरमाया? He is warning the church that who has deceived you. हो, इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ हम पढ़ते हैं कि वो भविष्य वक्ता था, फिर भी कर्जदार था। ये जरूरी नहीं कि आप मसीह में हैं तो आप धनवान हो, रिच हो।
That's why you look into this story here, that although this man, the prophet's wife who is coming and talking to Elisha, she says, although he was a prophet, but still he was not rich. He had to give money to the people. हो तो जो जिसका कर्जदार था वो आया है कि मेरे बेटे को दास बनाना चाहते हैं. Now the creditors came, whose money my husband owed, to whom my husband owed the money. They are coming and they want to take my son so that my son should serve them and become their slaves. क्योंकि वो भविष्यवक्ता की पत्नी थी और विश्वासी थी. Now she was the wife of a prophet and she was a believer. इसीलिए वो दूसरे जनों के साथ में दूसरों को सलाह लेने नहीं गई. That is the reason she did not go to take counsel and advice from the other people. वो मसीह के साथ परमेश्वर के जन के पास में आई, जो एलिशा वो भविष्यवक्ता के पास She आई came और to Elisha, who is a prophet and a man of God. उसके पास आकर के पूछ रही कि मैं क्या करूं. And she says, this is the situation, what should I do now? जो कि मैं ऐसी कठिन परिस्थिति में हूं. I'm in a difficult situation now. मैं उनको दास बनाना नहीं चाहती, मेरे बेटे को संसार की दास बनाना नहीं चाहती. I don't want my children to become to come in bondage and remain slave to these people of this world. ये बड़ी हमारी डिसीजन होता है भाई बहन, हम संसार को इनकार करें, संसार की दासत्व को इनकार करें. This is a great decision of our life, brothers and sisters, that how should we learn how to deny the things of this world. जब हम ये स्टेप लेते हैं, When we take this step, तो फिर ऑटोमेटिक फिर प्रभु फिर हमारे साथ में आ जाते हैं और प्रभु हमें आशीष, फिर बरकत और सहारा, सहायता, मदद देते हैं. when we take such step for the Lord, then Lord comes and stands beside it and supports us and gives us the strength to go through the situation. संसार को डिनाई करने का मतलब है कि परमेश्वर को इनवाइट करना, परमेश्वर को स्वीकार करना. To deny the world is to follow and accept the Lord. और जब परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं, परमेश्वर को बुलाते हैं, तो फिर परमेश्वर लीड और गाइड करते हैं और सहायता मदद करते हैं. जहां परमेश्वर हैं वहां आशीष है, And we वहां take the बरकत है. side of the Lord, then the Lord comes and stands beside us and he helps us and leads us and guides us. जहां फिर परमेश्वर आते हैं वहां फिर भरी पूरी है, क्योंकि मेरा प्रभु, हमारा प्रभु भरी पूरी वाला प्रभु है. Now, then there is a fulfillment of everything when the Lord is on our side. यस. और वर्ष 2 कहता है, And then it says in the verse 2, तो एलिशा फिर पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं. and Elisha asked her, what shall I do for you? और फिर एलिशा कहता है कि तुम्हारे घर में क्या है. And he asked her, what have you got in your house? और उस स्त्री ने कहा, तेरे दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है. हालेलुया. And she said that your maid servant has nothing in the house but a jar of oil. एक जार में तेल है, एक हांडी में तेल है, सिर्फ उतना ही है. I just have some oil in a jar. तो फिर एलिशा ने क्या कहा? Now what did Elisha say to her? उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसनों के से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना. And Elisha told her, go and borrow the vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few. That means bring many. मैंने थोड़े नहीं लेना, बहुत सारा लेना. खाली बर्तन तुम्हारे पड़ोसन जो आस पास में हैं, उन सब के पास जाकर के मांग लो. खाली बर्तन तो कोई भी देगा. Don't just bring a few, but bring many. हाँ, क्योंकि वहां मिराकल होने वाला था, आश्चर्य कर्म होने वाला था, आशीष होने वाला था. Because a great blessing was waiting to come there and great miracle was to happen in this situation. क्योंकि उसने संसार को इनकार किया था, संसार की दासत्व को इनकार किया था. Because this woman had denied the slavery and bondage of the world. और वर्ष 4 कहता है, And it says in the verse 4,
फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उसे अलग रखना। आमीन। And now he says, do something. We go, when you come in, shut the door of your house behind you with your sons. Then pour the oil in all which you have got, pour that oil into these vessels and set aside the full ones. आमीन। Amen. तो आपने घर में जाकर के द्वार बंद करके उन बर्तनों में, जितने भी बर्तन तू लेके आई है, उन सब में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उसको साइड करते जाना। He says, now keep filling the oil from your jar into the empty jars which you have brought from the neighbors, and whatever is full, put them aside. वर्ष 5 कहता है, तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उड़ेलती गई। तब वर्ष 6 कहता है, तब बर्तन भर गए। जब बर्तन भर गए तब उसने उनके बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, मीन्स बेटों ने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। आमीन। Amen. Now you see what happened here when she took her sons and shut the door and started filling the oil into the jars which was brought, empty vessels which were brought. And as they were all full, then she asked her son, bring another vessel. And then they say, there is no another vessel. Then the oil also ceased. मीन्स वो जितने भी बर्तन ले आई थी वो भर गए, फिर भी उसमें से तेल और गिर रहा था। Now you see, whatever vessel they could gather and collect, empty vessels, they brought in, and from that one single jar in her house, she kept on pouring the oil in the empty vessel. They were all full until the last vessel was filled. फिर भी वो स्त्री कह रही, और बर्तन ले आ। And she says, bring more. पर बेटों ने कहा, अब नहीं है, और नहीं है, खत्म हो गए। Then the son said, now we don't have any more vessels. तब जाकर के तेल रुका। Then only the oil stopped. प्रभु का आशीष देखिए, प्रभु का ब्लेसिंग देखिए। See the blessing of God, that God filled them how much they had. God did not stop the oil. God filled the oil into every vessel they had. जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं, उसको आज्ञाकारिता करते हैं, तो फिर प्रभु आशीष से भरता है आपको। You see, when we hear the word of God and we become obedient, that the Lord fills us with the blessings. और वो सच्ची विश्वासनी थी। इसका एग्जाम्पल हम फिर से वर्ष 7 में पढ़ सकते हैं। आइए हम कंटिन्यू करते हैं। If we go to verse 7, then we will know what kind of believer this woman was. वर्ष 7 कहता है, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया। हालेलुया। Then she came and told to the man of God. और उसने उससे कहा, फिर वो उसने ये नहीं कहा कि तेल भर गया, वो प्रभु का दास, परमेश्वर का दास जाए कहीं भी, अब तो मेरा काम हो गया, नहीं चलो, ये नहीं। No, the man of God did not stop there. He kept on giving us a counsel, kept on guiding her. कि उसने उससे कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर ले। और told, यस, कंटिन्यू भाई। yes. The man of God told her कि तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। आमीन। Now he said, go sell the oil and pay your debts, and you and your sons will live on the rest. वो बहन, वो सिस्टर देखिए, हर जगह परमेश्वर की वचन को पूछ रही है, सुनना चाहती, परमेश्वर मुझे क्या आज्ञा देते हैं। Now that lady, that sister, the prophet's wife, that widow, is going to the man of God to hear the word of God, that what advice, what counseling God wants to give me. आपने मन से नहीं कर रही है। She is not doing things from her own.
वो तेल आ गया था, वो अपने मन से ये नहीं कही कि अब तेल आ गया तो अब मैं अपने भरी पूरी हो गई, आशीषित हो गई, प्रभु का दास, कोई बात नहीं, छोड़ो भूल जाओ, नहीं। Now, as she received the oil and she filled the oil in the empty jars, and she did not feel contented, she did not feel satisfied just with that. No, she still went to inform and to tell the man of God. जब आप हर काम को परमेश्वर से पूछ करके, परमेश्वर के आज्ञा को जान करके, परमेश्वर की आज्ञा मांग करके करते हैं, तो फिर वहां, सिर्फ वहां आपका ब्लेसिंग होता है। Our blessing finally comes when we not only do little, when we continue and stay in the counseling and guidance of the word of God, then we keep on receiving the final blessing. लोग थोड़ी सी कष्ट में होते हैं, बीमारी में होते हैं, आ जाते हैं, भाई जी प्रार्थना कर लेना, भाई जी दुआ कर लेना। जब थोड़ा सा चंगाई हो गया, फिर ढीला पड़ जाते हैं, फिर कभी सुन लिया, कभी नहीं सुन लिया, कभी आ गए, कभी नहीं आए। When people get into trouble or sickness or suffering, they come for the prayers, and when they get healed, and then they become lazy and careless, and then they don't bother much, and then become casual. फिर वो संसार के दासत्व में फिर से भरमाए जाते हैं। Then they go back again into the things of the world. और फिर वो संसार के दास होकर के वो विनाश की ओर चले जाते हैं। And then again they get into the trap of the world and slavery. आप हर परिस्थिति में, वचन कहता है, हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद दो और प्रभु की उपस्थिति में डरते कांपते चलो। Now it says, in every situation, trembling and believing, obey the word of God. Stay there. उसकी आज्ञा को जानने की इच्छा रखें कि प्रभु क्या कहता है। Every time we should be anxious, we should be looking forward to know the will of God, what he wants. जैसा कि वो विडो ने, वो लेडी ने किया, वो भर जाने के बाद में भी फिर से जाकर के परमेश्वर के दास से ही पूछ रही है कि मैं क्या करूं अब। Exactly as that widow woman did, that even though she had received the blessing and the jars were filled, still she wants to know further, what should I do now? जब हम घुटने के बल जाकर के परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है, तो फिर प्रभु इतना अनुग्रही है, दयालु है, प्रेमीला है, वो बता देते हैं। Even having seen the blessings come into our life, if we continue to go and seek Lord with thanksgiving and ask, Lord, what should I do now? What is your will for me? तब फिर हम संसारिक भी होते हैं ना, तो जब बच्चा पूछता है कि पापा मैं ये क्या करूं क्या, तो हम कितने आनंदित होते हैं। वो तो स्वर्गीय पिता है, कितना आनंदित होता है जब उसकी इच्छा को पूछते हैं हम। Even though we look very blessed and fulfilled, but still when we come and give thanks and ask the will of the Father, then even as a child, our child makes us happy when he asks us, how much will our Heavenly Father be happy when we continue to ask him? तो फिर वो और कितना भरी पूरी करेगा हमें। How much more he will fulfill us. इसीलिए हमेशा हमें परमेश्वर के चेलों ने भी हमेशा क्या करते थे, वो एकांत में पूछते थे, प्रभु इसका भेद बता दो, इसका रहस्य बता दो, वो हमेशा बता देते थे। That's why the disciples of Jesus Christ, they were always longing to learn more and more. So they would go to Jesus in private and ask him, the Lord, tell us further about this story. और वो हमें सुनने वाले मन रखना चाहिए, हृदय रखना चाहिए कि हम उसके लिए ललायित रहे, उसका आज्ञा सुने, उसके वचन सुने। We should always be anxious and looking forward to hearing more and more, to hearing more of the truth, so that we continue to be blessed and make the Lord happy. क्योंकि जब हम सुनते हैं, जैसा कि वो विडो ने सुना, हर वचन को सुन करके उसके अनुसार चला, तभी जाकर के वो आशीषित हुई। Now, as we continue to hear the word of God and continue to obey and live according to the word of God, then the blessing continues. जब परमेश्वर भी इसीलिए कहते हैं कि हे मेरे लोगों सुनो। That's why the Lord says, my people, come and listen. और यशायाह की पुस्तक 55 कहता है, Is Isaiah 55. यस,
says Isaiah 55. उसका हम मेनली हम पढ़ रहे हैं 3 से है, बट हम 1 से ही पढ़ेंगे। Isaiah 55, we will read from verse 1. आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिन दाम के आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो। हालेलुया। तुम आमीन, उत्तम आमीन। वस्तु खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा का वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा का वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। आमीन। Amen, amen, amen. Verse 1 to 3 or 1 to 4? Yeah, 1 to 4. Yeah. Isaiah 55, verse 1 to 4. Everyone who thirsts, come to the waters. You who have no money, come, buy and eat. Yes, come buy wine and milk without money and without price. Why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to me and eat what is good, and let your soul delight itself in the abundance. Incline your ear and come to me. Hear, and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you, the sure mercies of David. Indeed, I have given him as a witness to the people, a leader and commander for the people. Amen. आमीन। हमें कान लगा करके और उसके पास आना है। We have to keep on hearing, give our ear to him, what he says. जब उसकी बातों को मन लगा करके सुनेंगे, when we will hear his things with close attention, with a good mind, तभी जाकर के हम उत्तम वस्तु खा पाएंगे और तृप्त होंगे। then only we will be satisfied when we will be fed with the good food. और वो हम उसको सुनेंगे तभी हम उसके वचन से जीवित रहेंगे। हालेलुया। When we hear him diligently, then only we will stay alive by his word. और वचन ही हमें अनंतता में ले जाता है। And the word of God only takes us unto eternity. और वचन ही है जो हमेशा बना रहेगा। And this is the word of God which stays for all times. और जिसके पास वचन है वो अनंतता में रहेगा। The one who has the word, he has eternal life. ओ प्रभु की महिमा हो। And may the Lord be glorified in all things. इसीलिए फिर यशायाह 48 कहता है, As in Isaiah chapter 48, he says, Isaiah 48 verse 17 and 18. Isaiah 48 verse 17. Yes. यशायाह 48 का 17 और 18 उसमें लिखा है 17 and 18. यहोवा जो छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। हालेलुया। आमीन। और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। आमीन। Amen. 17:18, verse 17:18, Isaiah 48 says, Thus saith the Lord your Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord your God, who teaches you to profit, who leads you by the way you should go. Oh, that you had heeded my commandments, then your peace would have been like a river, and your righteousness like the waves of the sea. Amen. आमीन। हम उसको सुने तभी हमारी लाभ है।
We must hear him, then only it is of profit to us. और वो शिक्षा हमारे लाभ के लिए देना चाहते हैं परमेश्वर। And the Lord wants to offer this teaching for our benefit. और हमें जो मार्ग पे चलना है वो मार्ग अपने वचन के द्वारा समझ के खोल करके प्रकाशन देते हैं हमें। And whatever is necessary for us, the Lord gives us that benefit and that blessing through his word. और हम उस पर चल करके हम क्या होते हैं? आशीषित होते हैं, शांति पाते हैं, धर्मी कहलाते हैं। आमीन। And we get the benefit by following that. जब हम उस वचन को सुन करके उस पर चलते हैं, मार्ग को जान करके उस मार्ग में चलेंगे, तभी हम ब्लेस्ड होंगे। When we follow that word, then only we will be blessed. जैसा कि हमने प्रकाश के पुस्तक में से पढ़ा था, As we had read just now from the book of Revelation. कि जो सुनता है, जो पढ़ता है और जो उस पर चलता है वही धन्य है। The blessed is he who listens and who hears and who follows. बिना उस पर चले आशीषित नहीं हो सकते मेरे प्यारे भाई बहन। Without following, we cannot be blessed, dear brothers and sisters. और हमें सुनना और उसको विश्वास करना, उसको मानना और उस पर चलना है। And we have to hear, we have to follow, we have to obey. और इसीलिए फिर इब्रानियों की पुस्तक 2 कहता है, That's why it says in Hebrews chapter 2, इब्रानियों की पुस्तक 2 उसका 1, Hebrews chapter 2 and verse 1. इस कारण चाहिए कि हम इन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। आमीन। He says, therefore we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. हम सुने हुए वचन पर और ज्यादा मन लगाएं। We should have persistent mind towards the things we have heard from word of God. और उस पर चलने की कोशिश करें। नहीं तो मेरे प्यारे भाई बहन, हमने शुरू में कहा था कि संसार की चीज भी हमें अट्रैक्ट करके हमें भरमा सकती है, बहकाने की कोशिश करता है। As we saw in the beginning, that things of the world and attraction of the world can distract us and take us away from the word of God. क्योंकि वो स्वयं दास है, हमें भी दासत्व में ले जाना चाहता है। Because the king of the world is in sin, in bondage of sin, and he also wants us to imprison, to become a slave of the sin. और वो हमें नाना प्रकार का अट्रैक्शन दे करके, मन लुभावनी बातें दिखा करके हमें भरमाने की कोशिश करता है। He gives us and shows us various attractions of the world and wants us to make a slave. पर जो इनकार करना जानता है, the one who knows how to deny and refuse, तो फिर उसके लिए आशीष का द्वार खुलता है। then the doorway to the blessing opens for such a person. जैसा कि उस विडो ने किया, As that widow did. उसने संसार को इनकार किया, She denied the world. पर परमेश्वर के वचन को हमेशा सुनने की ललायत रही। And she went and heard the word of God. She was always anxious and ready to hear the word. इसीलिए फिर वचन पहली यूहन्ना 2 में कहता है, That's why it says 1 John and chapter 2. उसका वर्ष 24 and 25, 1 John and chapter 2 and verse 24 24 and 25. यस, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 24 और 25 आयत। 1 John chapter 2 verse 2 and 24 and 25. जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे, और जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है वो अनंत जीवन है। आमीन। Amen. He says in 1 John chapter 2 and verse 24 and 25, therefore, let that abide in you which you have heard from the beginning. If what you heard from the beginning abides in you, you will also be able to abide in the Son and in the Father.
And this is the promise that He has promised us, that is eternal life. आमीन। Amen. हम जो शुरू से हमने सुना है उसको हमें पालन करना है, उसमें बने रहना है। We have to abide in whatever we have heard from the beginning, और in वचन our में beginning of the teaching, and we have to continue. वचन में कैसे बने रहा जा सकता है? How do we abide in the word of God? उसके वचन को पालन करके। To continue obeying and following it. जब हम वचन में चलते हैं, when we follow the word of God, तब फिर हम वचन बन जाते हैं। हालेलुया। then we become the word of God. Amen. जैसा कि यीशु को जन्माने से पहले मरियम ने वचन को विश्वास किया तो वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। As Miriam, that woman called Mary, as she received the word of God, and that's how that word became flesh through her. और आज यीशु ख्रिस्ट किसी से बात करना चाहते हैं तो किसके द्वारा? हमारे द्वारा। Now, how would the Lord speak to the world today? Is it through us? और चलना चाहते हैं हमारे द्वारा। And also seeing us should follow the Lord. जब हम उसकी आज्ञा को फॉलो करते हैं, जब उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसके वचन में रहते हैं, चलते हैं, तब वचन हम में रहता है, हम वचन में बने रहते हैं। When we follow the word of God, then the word of God abides in us. तभी जाकर कि वो शाइनिंग, वो चमक, वो प्रकाश हम में चमकता है। यीशु ख्रिस्ट का चमक हम में then only the light shines, the light which is of the word of God, which is of the Lord, then only the light will shine through us to the world. इस संसार में, तभी तो प्रभु ने कहा इस संसार के ज्योति तुम हो। That's why he says you are the light of the world. हो, यीशु ख्रिस्ट का चमक जब हम में रिफ्लेक्ट करेगा तभी जाकर के हम इस अंधकार के लिए हम ज्योति होकर के चलेंगे। When the light of Jesus Christ will reflect through us, then only we will show a path to the dark world through us. और वो वचन हम में बना रहेगा तभी वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। And it will reflect the light of Jesus Christ through us only when we stay in the word. और हम वचन में न रहें और संसार में रहें तो इसीलिए प्रभु ने फिर से एक वार्निंग दिया है हमें। The Lord has given admonition and a warning that we stay in the world, but we don't belong to the world. हाँ, पर आज का ज्यादातर लोग ये अपने आप को मसीह मानते हैं और हम जिस समय जिस काल में जी रहे हैं वो बहुत खतरनाक वाला काल है। The times we are living is very, very dangerous. So we have to know what kind of Christians we call ourselves. जो कि परमेश्वर के वचन कहता है हम लाउदीसिया के युग में हैं वचन के अनुसार। The word of God says that we are in the church age of Laodicea. और इस एज में न तो गर्म है न ठंडा है। And neither we are hot nor we are cold. वो विश्वासी भी कहलाते हैं। Although they are called believers, पर वचन में नहीं है। but they are not found in the word of God. और वो वचन को मानने वाले कहलाते हैं पर वचन में चलते नहीं हैं। सुनने वाले कहलाते हैं पर वचन सुनने वाले कहलाते हैं पर वचन को पालन नहीं करते। They may hear the word of God, but they don't follow and live with the word of God. इसीलिए प्रभु ने प्रकाश की पुस्तक में बार-बार कहा है जिसका कान है आत्मा क्या कहती है सुनो। That's why the word of God says in the book of Revelation that let him who has an ear should hear what the Spirit says to churches. और हम एक अंतिम कलाम पढ़ेंगे। We will read a last scripture. और हम संपन्नता की ओर जाएंगे। Then we will go towards completion. या प्रकाश की पुस्तक The book of Revelation, चैप्टर 3, chapter 3, यस, उसका 20 में से मैं पढ़ूंगा। and starting from verse 20. Revelation 3:20. यस, परमेश्वर कितना महान है और कितना पेशेंस रख रहा है। How patient our Lord is and how great he is. और प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है वो यहाँ दर्शाता है। And how much patience he has got, how much love he has
and how much he loves us, it shows here. वो हमें नाश होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, He doesn't want to see that we are being destroyed. पर उसके लिए आवश्यक है कि हम उसकी आवाज को सुने, But it's necessary we should hear his voice. क्योंकि वो भद्र है, And because he's both gentle. इसीलिए वो किसी पर जबरदस्ती नहीं करते हैं। And that's why he doesn't force things on Yeah. people. वो जो कोई ओपन करता है, जो कोई खोलता है, उसमें प्रवेश करते हैं। And whoever opens for him, the Lord will come and enter into his house. यस, यहाँ वचन में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा वह खटखटाता हूँ, यदि कोई Yes. मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास आकर भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। And he says here that whoever I stand at the door and knock, anyone who hears my voice and open the door, I will come into him and dine with him, and he with me. आमीन। प्रभु द्वार के बाहर खड़े हैं। The Lord is standing outside the door. द्वार ये नहीं कि चर्च, द्वार है हमारे हृदय के। It is not the door of the church building. It's not, but it is the door of our heart. हाँ, जो कोई यहाँ ये नहीं बोले कि तुम सब लोग, ये नहीं, जो कोई खोलेगा। He is not giving a general order, but he is telling to the individual, to you and me as an individual, the whosoever. जो कोई खोलेगा, द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आऊंगा। हालेलुया। Only the one who opens the door for him the Lord will come inside. सबसे पहले तो हमें सुनना आवश्यक है First of all, we must hear कि परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर का पुकार, the voice of God. तब जाकर के परमेश्वर हमारे अंदर आएंगे। Then only he will enter जब हम द्वार खोलेंगे, when we open and invite him. और वो हमारे साथ में भोजन करेंगे। Then he will have supper with us, eat food with us. और यीशु ख्रिस्ट ने कहा है कि भोजन क्या है करके। And he said, what is the food? और जो कि आई बिलीव यूहन्ना 4 में, And it says in John 4, once just moment brother, मुझे जहां तक है कि मेरे भेजने वाले के आज्ञा को पालन करना ही मेरा भोजन है। यस, it says John 4, John 4, which verse is that? and that is verse 34 brother. Yes, John 4:34. yes. प्रभु यीशु ख्रिस्ट यहाँ उत्तर दे रहे हैं। The Lord is replying here. जो जब चेलों ने उनसे पूछा खाने के When the बारे में, disciple asked him about the food, तब प्रभु यहाँ उत्तर दे रहे हैं। then the Lord is replying. यूहन्ना 4:34 में यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आमीन। He says to him, my food is to do the will of him who sent me and to finish the work. Yes, वो हमारे भीतर आकर के वो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, लीड और गाइड करेंगे। He will lead and guide and inspire us to go as per the will of God. जब वो हमारे भीतर होंगे, उसकी आत्मा जब हमारे भीतर होगा, when the God Spirit enters us, then he will guide us unto fulfilling the work. वो भोजन वो है जो उसकी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। The food is to fulfill the will of God. तब जाकर के हम जय पाएंगे। Then only we will overcome. और फिर हम उसके साथ में सिंहासन में बैठेंगे। हालेलुया। Then only we will sit with him on the throne. जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, तब जाकर के हम पिता के साथ में सिंहासन में बैठेंगे। हालेलुया। When we fulfill his desire, his will and his commandment, then only we will be allowed to sit on the kingdom, in his kingdom on the throne. हो, प्रभु के नाम की महिमा हो।
May the name of the Lord be blessed. इसीलिए फिर वचन कह रहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। That's आमीन। why the word of God says, let him hear who has an ear, that what the Spirit says to the churches. इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, That's why, dear brothers and sisters, अगर हम सुनने की लालसा रखते हैं तो ये फर्स्ट स्टेप है। if we have a desire to hear and listen, this is the first step. और उस पर ईमान ले आते हैं, वो सेकंड स्टेप है। And second step is to believe. और उस पर आज्ञाकारिता ले आते हैं, उसको पालन करते हैं, ये थर्ड स्टेप और ये फाइनल स्टेप है। And remain faithful and obey and live with it. This is the final stage. जब हम उस स्टेज को पूरा करते हैं, उसमें कंटिन्यू रहते हैं, तभी जाकर के हम परफेक्शन में आते हैं, तभी जाकर And के when हम we obey, come to the stage of obedience and continue it, then we come to perfection. ये नहीं कि आज, Not that only today. ये नहीं कि आज विश्वास कर लिया और कल से फिर हम अलग रास्ते में चलने लग गए। Not that just today we show that, okay, everything is good, and tomorrow we start our own way. हमेशा जैसा कि उस विडो ने हर परिस्थिति में परमेश्वर की आज्ञा को पूछती रही, परमेश्वर के वचन सुनना चाहिए। Like that widow who continued to hear the word and advice from the man of God. क्या आज्ञा है, वो आज्ञा जानने की इच्छा रखी। And she wanted to know what is the next commandment, what is the next advice. और तभी जाकर के वो आशीषित हुई। That is why she was blessed. तो आज का हमारे लिए ये लेसन है मेरे प्यारे भाई बहन, This is the lesson for us, dear brothers and sisters, कि हम सिर्फ सुने ही नहीं, सुनना बहुत अच्छी बात है, then not only that we should hear, although hearing is very good, और विश्वास करना और भी अच्छी बात है सुने हुए पर, and then to believe on what we heard is yet another good thing. पर हम उस पर कंटिन्यू चलने वाले, आज्ञाकारी बनने वाले बने, तभी जाकर के वो सुनना और वो आज विश्वास करना हमारे लिए The listening and hearing becomes fruitful only when we follow and stay faithful on that. उसने ये, वो विडो ने ये क्वेश्चन नहीं किया कि सिर्फ एक ही जार है, आप इतने बोतल क्यों मंगा रहे हो। The widow did not ask any question or argument that why you are asking me to bring so many jars. क्योंकि मेरे पास तो एक छोटे से कुप्पी में तेल है। Because I have got only one jar, that is not very good enough. सबसे पहले उसने सुना, First she heard और उस पर विश्वास किया, and she believed on that और उसको आज्ञाकारी रही। हालेलुया। and remained faithful. तभी वो ब्लेस्ड हुई। Then only it was blessing. प्रभु के नाम की महिमा हो। May the name of the Lord be glorified. प्रभु हमें ऐसा ही आज्ञाकारी, विश्वासी, वचन पे सुन करके चलने वाले बनाए, हम अंत तक स्थिर रहने वाले हो सके। May the Lord bless us so that we should continue to and stay faithful until the end. प्रभु आप सबको आशीष दे। May the Lord bless you all. इस छोटे से संदेश के द्वारा And by this small word from the word of God. और मेरे लिए प्रार्थना में याद रखिएगा। And remember me in the prayer. क्योंकि मुझे प्रभु की आशीष की और आप सबकी दुआओं की बहुत आवश्यकता है। I need your prayer and the blessings from God ever. हाँ, भाई को प्रभु आशीष दे। थैंक यू ब्रदर इमानुएल, गॉड ब्लेस यू भाई। थैंक यू। ओवर टू Thank you, brother. इमानुएल। Thank you, brother Krishna. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो और इस संदेश के लिए जो हम सब ने सुना, और हम ना केवल इसके सुनने वाले हों बल्कि इस पर विश्वास करने वाले और इस पर चलने वाले हों कि परमेश्वर का जो वचन है वही अनंत जीवन है। The word of God is eternal life. Not only that we hear and we just believe, but that is very good, but we must obey and follow it and continue and sustain us until the time we are on this earth. May his name be glorified. प्रभु के नाम को महिमा मिले। Our meeting is toward the end now. Now we will finish it with the word of prayer with Brother Rajinder Masih. By Rajinder Masih के साथ हम प्रार्थना करेंगे। God bless you, brother. You can start the prayer, Brother Rajinder Masih. God bless you, brother. God bless you. तो आइए हम सब लोग खुदावंद की हजूरी में आते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं।
कि प्रभु ने ये हमें समय दिया है कि प्रभु की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें। और धन्यवाद करते हैं प्रभु का सबसे पहले, खुदावंद ने हमें बेहद सच्चा पवित्र कलाम दिया है, वचन का प्रकाश दिया है। और प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तू राजाओं का राजा है, सब पे प्रभुता करने वाला परमेश्वर है, हर चीज का रचयिता है तू खुदावंद। हर चीज को तूने अपने हाथों के द्वारा बनाया प्रभु जी, हमें भी तूने बनाया खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और तेरे कलाम को याद करते हैं, तेरे सच्चे वादों को याद करते हैं खुदावंद। तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में मौजूद होते हैं और पूरी आत्मा और सच्चाई से तुझे पुकारते हैं, तेरी बंदगी करते हैं खुदावंद, तू वहाँ मौजूद होता है। और खुदावंद तेरे कलाम में आया, जितनों ने भी तुझे कबूल किया है उन्हें तूने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। तो खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तूने अपनी दया के वसीले से हमें चुना है, हमने नहीं तुझे चुना। और तूने इसलिए चुना है कि हम बहुत सारा फल लाएं प्रभु जी। और खुदावंद तूने कलाम में कहा, मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने भी तुझे पुकारते हैं और पूरा टूटा है मन लेके तेरी हजूरी में आते हैं, तू टूटे हुए मनों को कभी भी तुच्छ नहीं जानता प्रभु जी। तू प्रार्थनाओं को सुनने और जवाब देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तेरी आंखें तेरे कान सदा धर्म जन की दुआओं की तरफ लगे रहते हैं प्रभु। दया कृपा कर खुदाबंद, हम जब तक इस जमीन पर रहें खुदाबंद, हर बात में हर समय तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें प्रभु जी। होने दे खुदाबंद, हमारे जीवनों में तू बढ़े तो हम घटें प्रभु जी। दया कृपा कर कमियां कमजोरियां उठा ले अपने वचन के वसीले से, अपने पवित्र लहू के वसीले से। और तेरे कलाम में आया कि खुदावंद यशाया में जैसे लिखा है कि तेरा हाथ इतना छोटा नहीं है कि उद्धार ना कर सके प्रभु। चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा प्रभु जी। दया कर खुदावंद, ईमान विश्वास की तकड़ाई दे, मजबूत कर प्रभु जी। खुदावंद हर समय खुदावंद तेरे ईमान विश्वास में बने रहे खुदावंद, हमारे विश्वास को और बढ़ा प्रभु जी। और खुदावंद हमारा बैठना उठना चलना फिरना सब कुछ तेरे वचन के मुताबिक हो प्रभु जी। प्रभु जी हम तुझे भाने वाले हो सके प्रभु जी, दया कृपा करना प्रभु जी। और खुदावंद जितने भी भाई बहन इस मीटिंग में आए हैं प्रभु जी, सब पे तू आशीष बरकत देना, अपनी आमद के लिए तैयार करना, तैयारी वाला मसा देना प्रभु जी। और खुदावंद जब तू आए खुदावंद, हम पूरी तरह से तैयार पाए जाए, हमारी कमरे मदीरे, हमारे दिए जलते रहे प्रभु, सरगर्मी वाला आत्मा दे प्रभु जी। और खुदावंद कोई भी चीज हमें तेरे प्रेम से लग ना कर पाए प्रभु जी, सामर्थ्य दे खुदावंद, अनुग्रह कर प्रभु जी। और अगर कोई बीमार है प्रभु जी, तो शिफा देने वाला परमेश्वर है, उस ब्रदर सिस्टर को शिफा दे, वो तेरा एक अच्छा गवाह बने, तेरी महिमा करे प्रभु। अगर किसी की कोई दुनियावी आत्मिक जरूरत है तो अपने स्वर्गीय खजाने से पूरी कर प्रभु जी। और खुदावंद हम जब भी मिले आने वाले समय में प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें, सबको खुदावंद अपने कलाम में बनाए रखना, क्योंकि अच्छा चरवाहा तू है। और तूने कलाम में कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मेरे पीछे चलती हैं। खुदावंद हम सिर्फ तेरे पीछे चलें, तेरी आवाज को सुने खुदावंद खुदा। और प्रभु जी सभी को संभाल के रखना, जब तक इस जमीन पे रहें ईमानदारी से चले और तेरी महिमा करें और तेरे नाम की वड्याई करें। आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं हम प्रभु जी। खुदावंद इस कलाम के द्वारा बहुत सारा फल लाएं प्रभु जी, सुनने वाले नहीं उस पे चलने वाले भी बने प्रभु जी। दया कृपा करना, संभाल के रखना। और प्रभु जी तेरे आगे इस दुआ विनती को रखते हैं। और खुदावंद तूने कहा, मेरे नाम से जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा, और विश्वास कर लेना है तुम्हें मिल गया है। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि खुदावंद तो हमारे कामों के से नहीं बल्कि अपने दया के वसीले से जो भी मांगा खुदावंद तूने हमें दे दिया है। इस सारी दुआ बेनती को मांग लेते हैं और पा लेते हैं पूरे जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी जलाली नाम से, आमीन आमीन। Amen. Thank you, brother. God bless you.
हमारी मीटिंग आज की यहाँ